हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है डीएम सीरीज के फोर्थ पार्ट पे। इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट फंक्शन। सो फंक्शन का नाम आपने सुना ही होगा। कंसिडर आवर हैंड हैविंग अ फंक्शन ग्रिप, राइटिंग एंड सीविंग एक्सेट्रा। नाउ कंसिडर आवर हार्ट हैविंग अ फंक्शन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर आवर हेल्थी बॉडी। मीन्स हर बॉडी का पार्ट का फंक्शन अलग होता है। लाइक अब अपने हाथ का फंक्शन हाथ नहीं कर सकता है और हार्ट का फंक्शन हाथ नहीं कर सकता है। अगर दोनों ने एक दूसरे का फंक्शन किया तो बॉडी डायरेक्ट भगवान के पास। वैसे ही सब्जेक्ट वाइज डेफिनेशन फंक्शन की बदल दी जाती है। लाइक हियर वी सी दैट डेफिनेशन फॉर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, we see the definition now of function. So a function or mapping is a relationship from elements of the one set X to the elements of the another set Y. Consider कीजिए, one set having your mom and dad and another set is you and your brother or sister. According to our function definition, when there is a relation from the elements of one set X to the elements of the another set Y, then we call them as a function. So basically you and your brother or sister having relation with your mom and dad called as family. So family is a function. Now we see example for the better understanding of function. Here we see that diagram. So A contains elements 1, 2, 3, 4, and B contains element 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो या इन सेट ए एंड सेट बी में कोई ना कोई अगर रिलेशन हुआ तो हम इनको कहेंगे फंक्शन। हियर वी सी दैट एफ ऑफ टू इज इक्वल टू फोर। मीन्स आप देख सकते हैं कि वन की यहाँ डबल हो रहा है, मीन्स टू, टू का डबल फोर, थ्री का डबल सिक्स एंड फोर का डबल एट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द सेट ए एंड सेट बी। सो अब इसको हम प्रॉपर्टी में लिखेंगे। लाइक एफ ऑफ टू इज इक्वल टू फोर, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू, एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू सिक्स, एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू एट। सो it is a function because we got a one relation between this set A and set B. So there are many important types of a function. First we see domain. So basically domain होता क्या है? If a function f is a from a to b, we say that a is the domain of a. Means here we see that diagram for better understanding. So it is the universal set which is represented by a rectangle, and it is a set A and it is a set B. So according to our definition, f is a function from A to B. So we say that A is the domain of A. Means these elements like 1, 2, 3, 4 are the elements of our domain. Now we see codomain. So basically codomain क्या होता है? If f is a function from A to B, we say that B is a codomain of A. So it is a diagram for better understanding. So it is again rectangle represents our universal set. It is set A and set B. Now we see our definition. F is a function from A to B. Then B, we say that B is our codomain. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 are the elements of our codomain. Also we say that set B is our codomain. Now we see image. If f of a is equal to b, here it is a property, we say that b is the image or direct image of a. Now we see diagram for better understanding. It is again universal set represented by rectangle. It is a set A and it is a set B. So according to our definition, f of a is equal to b, we say that b is the image or direct image of a. So यह image क्या है? 2, 4, 6, 8. It is a image because according to our definition f of a is equal to b. Now we see pre-image. If f of a is equal to b, we say that a is a pre-image. Also we call that inverse image of b. Like here we see that.
For better understanding a example, so it is universal set, it is a set A and it is a set B. Now we see if f of A is equal to B, we say that A is a pre-image or also we say that inverse image of B. So यहाँ आप देख सकते हैं प्री इमेज और इनवर्स इमेज क्या है. So 1 2 3 4 it is a inverse image. Like also we say that all domain is a inverse image, but हम ऐसा नहीं कह सकते कि को डोमेन इमेज हो सकते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ इलेमेंट लाइक असाइन नहीं होते. लाइक इन दैट एग्जांपल 3 5 6 3 5 7 ये एलिमेंट्स असाइन नहीं है इन दिस सेट, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ image. That's why we not considered our full codomain as a image. We considered but our full set, like domain, our full domain considered as a pre-image or also we say that inverse image. Now we see the range. The range of F is the set of all images of a element of a A. So basically या images कौन से 1 4 9 16 मीन्स जो भी element को डोमेन के असाइन होते हैं डोमेन से उनको हम कहते हैं रेंज. लाइक ऑल्सो वी कॉल दैट आवर इमेजेस ही हमारी रेंज है. लाइक हियर वी से दैट ए 1 2 3 4 is a domain, 1 4 9 16 25 36 is our codomain and last we see 1 4 9 16 is a range. So yeah, basically क्या है डेफिनेशन, द रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस. मीन्स इमेजेस से हमारा रेंज होता है एंड इसमें प्री इमेज कौन सी है, सो 1 2 3 4 प्री इमेज एंड इमेज कौन सी है 1 4 9 16 एंड हमारी रेंज कौन सी है, it is the set of images like 1 4 9 16. Now we see some examples and also we call that some sum. So ये first questions आपके पेपर में आ सकते हैं. लाइक द फंक्शन दैट असाइंस टू अ बिट स्ट्रिंग्स द नंबर ऑफ वन बिट्स इन द स्ट्रिंग. कभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पहले असाइन देखने का है. सो असाइन, असाइन के बाद का टर्म ही हमारा क्या होता है कोडो में. सो यहाँ क्या है बिट स्ट्रिंग्स, तो बिट स्ट्रिंग्स में आएंगे 0 1 0 0. सो इट इज द पार्ट ऑफ अ डोमेन लाइक 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 एंड मेनी मोर. अब हमें देखना है उसके आगे का पार्ट. सो आगे का पार्ट हमेशा होता है रेंज. लाइक हियर वी सी दैट द नंबर ऑफ वन बिट्स इन द स्ट्रिंग. सो वी अंडरलाइन फॉर इट इज अ इम्पोर्टेंट वन बिट्स. सो वन बिट में हमेशा जीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है. बट वेन वी सी ओनली बिट्स देन हमें वन से कैलकुलेट करना है. बट वेन वी सी वन बिट देन हमें जीरो से कैलकुलेट करना है. सो लाइक हियर वी सी दैट मीन्स रेंज में हमेशा कौन सा नॉन नेगेटिव इंटीजर होते, लाइक 1 2 3. So it all are positive integer and 0 does not belong to positive integer and does not belong to negative integer. That's why इट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर सम सॉल्विंग. अगर कभी भी वन बिट हुआ तो आप जीरो कंसिडर करेंगे, अगर बिट ओनली हुआ तो आप वन से स्टार्ट करेंगे. सो रेंज इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ वन बिट्स इन द स्ट्रिंग. सो रेंज का कौन से इलेमेंट होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स 0 1 2 3 आपको, बिकॉज यहाँ हमने लिखा है वन बिट्स. नाउ वी सी सेकेंड एग्जाम्पल. द फंक्शन दैट असाइंस टू ईच पॉजिटिव इंटीजर the number of the digit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 that do not appear as a decimal digits of the integer. So इसका आंसर भी देखेंगे. फर्स्ट वी सी असाइन. सो असाइन यह है, सो इसके आगे का पार्ट हमारा डोमेन है. सो ईच पॉजिटिव इंटीजर मीन्स ईच पॉजिटिव इंटीजर हमारा डोमेन. हियर वी सी दैट द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 and goes to infinity. Now we see range part. So the number of the digit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 that do not appear as a decimal digit of the integer. मीन्स इन नंबर से हमें एक डिजिट बनाने मीन्स कई डिजिट बनाने. सो ऐसा कोई नंबर फाइंड करना है जो डेसिमल डिजिट में ना हो. लाइक we take a one number like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. So it is first number. So decimal digit में क्या आया 9 आया. So now we take second number 1 2 3 4 5 6 7 8 and 0 9. So अब second number में decimal digit में क्या है 0.
सो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो डेसिमल डिजिट में ना है। तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है, बिकॉज हम सारे नंबर यहाँ के डेसिमल डिजिट में आ रहे हैं। सो वी बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द रीड। द रेंज इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ डिजिट्स ऑफ द सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 that do not appear as a decimal digit of the integer, because सारे नंबर डेसिमल डिजिट में आ रहे हैं। सो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो डेसिमल डिजिट में नहीं आ रहा है। सो एनी इंटीजर कंटेन्स एटलीस्ट वन डेसिमल डिजिट फ्रॉम द 10 पॉसिबल डिजिट, and thus there can be at most 9 digit. Like we take one number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is 0. So इसमें ऐसे कितने नंबर है जो डेसिमल डिजिट में आए? सो ओनली वन नंबर। एंड ऐसे कितने नंबर है जो डेसिमल डिजिट में नहीं आए? सो इट फर्स्ट 8 एंड लास्ट 0. But when we take another number like 1 2 3 4 5 6 7 8 and 0 and last line, so अभी कौन सा डेसिमल डिजिट में है? 0. एंड अभी कौन से ऐसे नंबर है जो डेसिमल डिजिट में नहीं आए? सो इट ऑल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Here we see that so all numbers of the sets are appear as a decimal digit. Means ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें डेसिमल डिजिट में ये नंबर ना आए। लाइक ये सारे नंबर डेसिमल डिजिट में आते हैं। Now we see another example of sum. The function that assigns to a bit string the numerical position of the first one in the string and that assigns the value of 0 to a bit string consisting of all zeros. So first we see assign part. So assign के part के बाद ही हमारा होता है domain का part. Here we see that bit strings. So bit strings are starting from 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1. Here we see that. अब रेंज का पार्ट, द न्यूमेरिकल पोजिशन ऑफ द फर्स्ट वन इन द स्ट्रिंग। सो हमने पहले ही देखा था रेंज में हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर आते हैं। सो यहाँ आप किधर भी देखो वन बिट लिखा है क्या? नहीं। यहाँ भी बिट है, यहाँ भी बिट है, किधर भी वन बिट नहीं लिखा है। सो जीरो रेंज में नहीं आएगा। That's why here we see that the range is the set of all numerical positions of the first one. Means जिधर भी first one है उनके लिए नॉन न्यूमेरिकल पोजिशंस पे कौन से नंबर आएंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स 0 1 2 3 4 5. But here in this question we not consider it or not mention one bit. That's why 0 is not come. Only coming part is 1 2 3 4 5 and goes to infinity. एंड अब आगे क्या दिखा है? दैट असाइंस द वैल्यू ऑफ जीरो टू अ बिट स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ ऑल जीरोस। मींस जिधर भी जीरो होंगे उनके लिए क्या है? रेंज में जीरो। एंड जिधर भी वन होंगे लाइक 1 0 1 1 0 1 1 उनके लिए क्या है? कौन से नंबर है? नॉन न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल पोजिशन नंबर होंगे लाइक 1 2 3 4 5. सो हमारे क्वेश्चन में वन बिट मेंशन नहीं किया है, बट उसके लिए नहीं दे है, ये लिखा है मीन्स नया पार्ट लिखा है दैट असाइंस द वैल्यू ऑफ जीरो टू बिट स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ ऑल जीरो। मीन्स जिधर जीरो होगा उनके लिए जीरो रेंज में लेना पड़ेगा। दैट्स वाई वी सी हियर दैट जीरो रेंज में है। 1 2 3 1 2 3 बिकॉज 1 0 1 1 0 and this 0 because 0 0 0 0 0 0 and goes to till infinity. Now we see another example. The function that assigns to a bit string the number of bits in the string. So first हम देखेंगे assign and assign के बाद ही हमारा टर्म होता है डोमेन का। सो बिट स्ट्रिंग्स, सो बिट स्ट्रिंग्स में क्या आएंगे? 0 1 0 0 0 1 एंड मेनी नंबर गोes टू इन्फिनिटी। अब यहाँ आप देख सकते हैं ओनली हमने क्या लिखा है? बिट्स। सो बिट्स लिखा है तो कौन से नंबर आएंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर ही आएंगे। जब भी हम वन बिट लिखते हैं तो नॉन नेगेटिव इंटीजर आता है, और जब भी हम बिट्स लिखते हैं तो कौन से इंटीजर आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। That's why here we see that the range is the set of all possible numbers of one bits in the string, and the range is the number of bits is always non-negative integer. But we didn't mention here one bit. That's why 0 is not there. When we mention one bit, then 0 is also come in this range. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फॉर अपकमिंग सीरीज। सो सीरीज में अभी हम एक और सीरीज ऐड करें लाइक स्मिथ।